Now today we will talk about the offense of cheating. Now section 415 defines cheating as that whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces that person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces that person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to person in body, mind, reputation or property, is said to cheat. Now you need to mark the words deceiving, fraudulently and dishonestly, induces delivery of property or retention of property, and then you need to mark the latter part. Alright, makes the person so deceived to do or omit to do anything, और फिर यू मार्क दैट पार्ट वेयर द हार्म टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी. उसको शॉर्ट में लिख लीजिए इंजरी. ऑलराइट, दैट वुड सफाइस. सो नाउ लेट मी ब्रेक डाउन द इंग्रेडिएंट्स फॉर यू. द फर्स्ट ingredient is deception. This is the most important ingredient. Deception of a person either by making a false or misleading representation or by other action or omission. That is the first ingredient. Second ingredient is fraudulently or dishonestly inducing any person to deliver any property. And third is to consent that any person shall retain any property. And finally, intentionally inducing that person to do or omit to do anything which he would not do or omit, and such act or omission causes injury to him. Alright, in short, right, injury to him, because if you look at the definition of injury under section 44, it is just the latter part of section 415, damage or harm to body, mind, reputation and property. That is very essential that you need to keep in mind these ingredients. Exam में इसी से ही शुरुआत करनी है. Alright, it is very essential that you start with this. So let me tell you one thing, that for the purpose of constituting an offense of cheating, the complainant is required to show that the accused had fraudulent and dishonest intention at the time of making promise or representation. This is very important. At the time or from the very inception of making the promise or representation, the accused must have fraudulent and dishonest intention. It is very necessary for the offense of cheating to be established. Because if this culpable intention or mens rea is absent, that is fraudulent and dishonest intention, if it is absent, then the offense of cheating would not be made out. And right now I would also like to read section 420. It is not a nuanced section, section 420, because that is mostly talking about the sentencing aspect, while section 415 talks about which aspect? Definitive aspect. It is defining this offense and defining the section. Always remember that in any criminal law, the most nuanced and technical section would be the one which defines the offense. That would be the one which is most nuanced. That would be the one which is most technical, relatively speaking. While the sentencing sections, which talks about that how much sentence would be imposed if, let us suppose, you commit that offense, would be relatively less nuanced. Alright, relatively speaking. So section 420 just talks about that whoever cheats and thereby dishonestly induces a person to deliver any property to any person, or make and alter or destroy a valuable security or anything signed or sealed which could be turned into a valuable security, then the punishment shall be for 7 years and fine. Alright, that is what section 420 is talking about. So in essence, it is saying that if you commit an offense of cheating which falls under the first part of cheating, that is by deceiving and with fraudulent or dishonest intention, you made a person deliver any property or you made a person consent to retain any property, then you would be punished under section 420. 420 punishment की बात कर रहा है, definition की बात नहीं कर रहा. Definition कहाँ पे है? 415 में. हमें डेफिनेशन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन समझ ली तो आपको पता है कि कौन से ऑफेंस में क्या साबित करना है. ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी. और जब भी आप जजमेंट्स पढ़ें, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जजमेंट्स में जजेस चार्ज मेंशन करते हैं, तो चार्ज हमेशा उस सेक्शन का बनाया जाता है जहाँ पे ऑफेंस पनिश हो रहा है.
डेफिनेटिव सेक्शंस का नहीं बनाया जाता जनरली, उसी सेक्शंस का बनाया जाता है जहाँ पे चार्ज का, जहाँ पे ऑफेंस का पनिशमेंट है। जैसे चार्ज जब 302 का लगता है तो 302 में तो मर्डर नहीं डिफाइंड है, मर्डर 300 में डिफाइंड है, पर चार्ज हमेशा 302 का लगेगा। वैसे ही मान लीजिए एलिगेशन है चीटिंग, एंड चीटिंग की वजह से डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो चार्ज लगेगा 420 का। ठीक है, तो एक छोटी सी बात क्लैरिफाई करनी थी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर चीटिंग एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 415 और IPC is that an intention of making initial promise or existence from the very beginning of the formation of the contract, the accused had no intention of performing the contract or no intention of fulfilling the promise from the very inception. ठीक है, it should be very easily established. Also, it must be borne in mind that mere failure to perform a contract or mere failure to perform the promise is not the offense of cheating. तो ये ध्यान रखिएगा, merely because एक person contract perform नहीं कर पाया या promise fulfill नहीं कर पाया, that is not the evidence of cheating. Something more has to be shown by the prosecution. What is that something more? It has to be shown by the prosecution that the accused person had dishonest and fraudulent intention from the very beginning. ये दिखाना ज़रूरी है, वरना चीटिंग का ऑफेंस नहीं होगा. इट वुड जस्ट गिव राइज टू सिविल लाइबिलिटी. तो इस पर मुझे आपको एक लोकस क्लासिकस बताने दीजिए, वो है महादेव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. अभी हम लोग लीगल पोजीशन की बात करते हैं, लीगल प्रिंसिपल कि लॉ क्या कह रहा है, फिर हम लोग फैक्चुअल और रिलेस्टेटिव चीज़ें देखेंगे कि लॉ अप्लाई कैसे हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व, क्योंकि एग्जाम में वही लिखना है. अब यहाँ पे कि इफ़ द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज अंडर सेक्शन 420, मतलब चीटिंग वाला है, and the charge says that he induced the complainant to part with his goods on undertaking that the accused would pay for the same on delivery but did not pay. Then if the accused had at the time he promised to pay cash against delivery an intention to do so, the fact that he did not pay would not convert the transaction into one of cheating. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर अक्यूज पर्सन अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना चाह रहा था और अगर वो कहता है कि आप गुड्स मुझे डिलीवर कर दीजिए घर पे और आप जब डिलीवर करेंगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए ड्यू टू सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस या किसी और वजह से वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता, पैसा नहीं दे पाता, तो वो इप्सो फैक्टो चीटिंग नहीं में आ जाएगा, वो चीटिंग में नहीं आएगा इप्सो फैक्टो. बट ऑन द अदर हैंड, if he had no intention whatsoever to pay but merely said that he would do so in order to induce the complainant to part with his goods, then the case of cheating would be established. तो सेकंड पोजीशन क्या है कि अगर वो शुरुआत से उसके दिमाग में डिसेप्शन, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और वो ये बात कहता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप गुड्स मेरे घर पे डिलीवर कर दीजिए, और उसके दिमाग में क्या सही करेक्ट पोजीशन है, उसके दिमाग में क्या इंटेंशन है कि मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे गुड्स मुझे डिलीवर कर दे, और जैसे ही मुझे गुड्स डिलीवर करेगा मुझे इसको पैसा तो देना नहीं है, मैं इसके गुड्स लेके भाग जाऊँगा. तो अगर शुरुआत से उसके दिमाग में ये इंटेंशन है, देन दैट वुड अमाउंट टू चीटिंग. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है or it is entirely dependent on fact and circumstances of the case, that whether the deception has been practiced or not, or whether the accused has dishonest intention or not. तो याद रखिएगा, अगर accused के दिमाग में पूरा intention है to perform the contract, to fulfill his promise, to pay for the delivery of goods, तो वो cheating नहीं कहलाएगा अगर due to some supervening circumstances he is unable to pay to the complainant. But on the other hand, if he had no intention whatsoever to pay, and he merely gave the assurance in order to make the seller to part with the goods, and if the seller actually on that assurance or the deception parts with the goods, then that would amount to cheating. अब देखिए,
ऑफेंस ऑफ चीटिंग जो है वो एक ऐसा लॉ है जो बहुत ही ग्रे एरिया में फॉल करता है क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि एक साइड पे ये सिविल प्रोसीडिंग में भी जाने लगता है और एक साइड में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी जाता है। अगर डिसेप्शन और डिसऑनेस्ट इंटेंशन या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन प्रूव हो गया तो ये क्रिमिनल साइड पे भी जाएगा, लेकिन अगर डिसेप्शन और डिसऑनेस्ट इंटेंशन या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन फ्रॉम द स्टार्ट नहीं प्रूव हुआ तो वो सिविल साइड पे ही रहेगा। तो अक्सर प्रैक्टिस में क्या होता है ना कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो गए तो पार्टीज उसको क्रिमिनल कलर भी दे देती हैं बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑफ चीटिंग, अक्सर ऐसा होता है। तो जनरली कोर्ट्स जो है ना दे फ्राउन अपॉन सच कंडक्ट, वो कहते हैं कि दे हैव टू सी कि वेदर द फैक्ट्स ऑफ द केस फॉल इन द सिविल साइड और इन क्रिमिनल साइड, और अगर प्राइमा फेसा उनको लगता है कि ऑफेंस ऑफ चीटिंग इज नॉट मेड आउट, then they may even quash the case and will tell the prosecution or the complainant to pursue the remedy in the civil court। आप सिविल सूट करिए बट आप इस केस में क्रिमिनल कोर्ट नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल केस नहीं बन रहा, क्योंकि अगर एलिगेशन जो कंप्लेंट पे हैं या एफआईआर में दिए गए हैं वो प्राइमा फेसाए अगर वो ऑफेंस ऑफ चीटिंग नहीं बना रहे, अगर प्राइमा फेसा वो ये नहीं दिखा पा रहे कि अक्यूज पर्सन हैड डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर ये एलिगेशन का पार्ट नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन कोर्ट हो सकता है क्वॉश कर दे इफ द अदर पैरामीटर्स फॉर क्वॉशिंग ऑफ एन एफआईआर एंड क्वॉशिंग ऑफ अ कंप्लेंट आर एस्टैब्लिश्ड, ये भी हो सकता है। तो अक्सर प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि पार्टीज क्या करती हैं कि सिविल सूट चल रहा है और उनको लगता है सिविल सूट डिसाइड होने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि क्रिमिनल केस भी कर देती हैं इन ऑर्डर टू मेक द ऑपोजिट पार्टी टू कम टू टर्म्स, उसको कंपेल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं दबाव और प्रेशर बढ़ाने के लिए वो क्रिमिनल केस भी कर देती हैं, ये अक्सर होता है। तो उसमें रेमेडी ये है कि अगर आप देखें कि एज अ लॉयर जो सूट है वो प्योरली सिविल नेचर का है पर कंप्लेनेंट पार्टी उसे क्रिमिनल रंग देना चाह रही है, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट और वहाँ से क्वाशिंग की रेमेडी अवेल कर सकते हैं, आर्टिकल 226 रेड विथ सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, अगर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिले और हाई कोर्ट मान लीजिए डिसमिस कर दे बट यू नो ऑन द पोजीशन ऑफ लॉ यू आर करेक्ट, देन यू कैन इवन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। So always remember, if the accused had at the time he promised to pay cash against delivery an intention to do so, it means in intention to pay the cash against the delivery of the goods, then the fact that he could not pay would not convert the transaction into one of cheating. But if on the other hand he had no intention whatsoever to pay but merely said so in order to make the seller part with his goods, then the offense of cheating would be established because he had deception and dishonest intention from the very beginning. Now in the case of B. Suresh Yadav versus Sharifa B, it was reported in 2007 volume number 12 scale page number 364. Supreme Court said that for the purpose of establishing the offense of cheating, the complainant is required to show that the accused had fraudulent and dishonest intention at the time of making the promise or representation. So, in the case of this nature, it is permissible in law to consider the stand taken by the party in civil litigation. ये भी एक method available है कोर्ट के पास. But immediately after saying that, Supreme Court just said a cautionary thing and said that we do not, however, mean to lay down a law that liability of a person cannot be both civil and criminal at the same time. But when a stand has been taken in a complaint petition which is contrary to or inconsistent with the stand taken by the complainant in the civil suit, it will assume significance. ऑलराइट, ये एक मेथड ओपन किया है सुप्रीम कोर्ट ने बाकी कोर्ट्स के लिए भी कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो ये कर सकते हैं कि वो ये देख सकते हैं कि जो कंप्लेनेंट है उसने सिविल सूट में क्या ग्राउंड लिया है और क्रिमिनल केस में क्या ग्राउंड ले रहा है. अगर दोनों ग्राउंड इनकंसिस्टेंट हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से कोर्ट ये इन्फेरेंस बना सकता है कि कंप्लेनेंट जो है वो प्रेशर बनाने के लिए क्रिमिनल केस कर रहा है. ऑलराइट, ये इन्फेरेंस
वो मेक कर सकता है। ये थोड़ी नॉवेल थिंग है क्योंकि जनरली ऐसा अलाउड नहीं होता, बट इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कह दिया था कि फॉर अ वेरी लिमिटेड पर्पस दे कैन सी दैट एंड दे सी that whether the stand taken by the complainant in the complaint petition is contrary or inconsistent with the stand taken him in the civil suit, that would assume a great significance. ध्यान रखिएगा, ये जनरल पोजीशन नहीं है, ये एक्सेप्शनल पोजीशन है। ऑल राइट, तो ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इट इज़ प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ लिटिगेशन। ये लिटिगेशन के पर्पस के लिए जजमेंट था, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब हमने ओवरऑल एक प्रिलिमिनरी लेवल पे हमने पोजीशन जान ली लॉ की, ऑन अ वेरी प्रिलिमिनरी लेवल। ऑल राइट, सो वी हैव अक्वायर्ड दैट लेवल कि अब हम इलस्ट्रेशन पढ़ें और लॉ अप्लाई करते करते समझें कि इलस्ट्रेशन 415 के कैसे काम कर रहे हैं। नाउ लुक एट सेक्शन 415 इलस्ट्रेशन ए by falsely pretending to be a civil servant intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have goods on credit which he does not mean to pay. तो यहाँ पे क्या है, he is cheating क्योंकि he is making another person to give him goods on credit. on credit मतलब उधार पे, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है पे करने का। So what is that? That is cheating. Because what he has done, he has fraudulently and dishonestly deceived a person first, and due to such a deceit he has induced the seller to give him goods on credit. Deception is illustration में क्या किया, he pretended to be a civil servant which he is not. Now we look at illustration B. A, by putting a counterfeit mark on an article, intentionally deceives Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer, and thus dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A cheats. It is, I think, very fairly easy to understand. यहाँ पे deception कैसे हो रहा है? यहाँ पे deception हो रहा है by a false counterfeited mark, उसके तरीके से हो रहा है। अब जैसे आप अमूल आइसक्रीम मंगाएं और आपको अमूल आइसक्रीम की बजाय अतुल आइसक्रीम बेच दी जाए और उस पर अमूल का स्टिकर लगा के बेच दिया जाए, तो वहाँ पे फॉल्स काउंटरफीट मार्क है कि नहीं है ना? देयर इज़ अ काउंटरफीट मार्क ऑन दैट, एंड ड्यू टू दैट यू आर इंटेंशनली लेड टू बिलीव दैट द आर्टिकल वॉज मेड बाय अमूल बट इट वॉज नॉट मेड बाय अमूल, एंड ड्यू टू दैट they have dishonestly induced you to buy that ice cream. That would amount to cheating. ठीक है, because putting of a counterfeit mark will also amount to cheating. Now next illustration is A, by exhibiting to Z a false sample of an article, intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with the sample, and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A cheats. Up here the deception is happening by giving you a false sample. Let us suppose you are in a shop. Now you are there to buy Ashirwad atta, let us suppose, and you are very sure about the quality. Now you need to buy 50 kg of Ashirwad atta. Now just bear with me. शॉपकीपर आपसे कहता है कि आशीर्वाद आटे की जो फैक्ट्री है वो मेरी जान पहचान में है, वो आपको इकट्ठे पैक करके दे देंगे, लेकिन वो आपको अलग अलग से 5-5 केजी की अगर आप बोरी लेंगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आप सोचते हैं कि यार ये तो अच्छी बात है, मुझे सस्ते में मिल जाएगा और वही आटा मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। उस पर्पस के लिए वो आपको एक आशीर्वाद आटे का सैंपल लेता है। आप उस आटे को देखते हैं, उसको परखते हैं हाथ पे, और आपको लगता है हाँ इट इज़ द सेम थिंग। उसके बाद आप कहते हैं ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद आटा डिलीवर कर दीजिएगा। अब वो आशीर्वाद आटे की बजाय लेट अस सपोज वो कोई बी ग्रेड आटा आपको दे देता है, पर आप तो सैंपल सोच के गए थे कि जैसा सैंपल दिया है वैसे ही बाकी का प्रोडक्ट होगा, पर वो ऐसा नहीं निकलता है।
तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन सी कह रहा है कि अगर फॉल्स सैंपल के थ्रू इंटेंशनली डिसीव किया जाए बायर को कि दैट द आर्टिकल करस्पॉन्ड्स विद द सैंपल, देन ही हैज डिसऑनेस्टली इंड्यूस्ड द बायर टू बाय एंड पे फॉर द आर्टिकल। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का पार्टिंग हो रहा है बायर की तरफ से? मनी का। ऑलराइट, यहाँ पे आपको सब स्टैंडर्ड गुड्स बेचे जा रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ अ फॉल्स सैंपल, तो डिसेप्शन हो गया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन साबित हो गया, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। सो जब ये इंग्रेडिएंट साबित हो गए एंड ड्यू टू दिस डिसेप्शन एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड, you were induced to part with your property, that is what? Money. Cheating is established. Now we come to the next illustration, that is illustration D. A, by tendering in payment for an article a bill on a house with which A keeps no money and by which A expects that bill will be dishonored, intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to deliver the article, intending not to pay for it, A cheats. अब इसमें बिल ऑफ द एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन से लेके बात हुई, तो मैं आपको ज़रा प्रेजेंट डे सिनेरियो में बात करता हूँ चेक के मीडियम से, ठीक है? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज से आप लोग ज़्यादा डील नहीं करते, तो उसको अगर मैं यहाँ पे समझाने लगूंगा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चेक के मीडियम से समझिए, क्योंकि चेक आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा और डेली लाइफ में यूज़ भी शायद करते हों। अब इस इलस्ट्रेशन को मैं थोड़ा चेंज करके आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए आप किसी होटल में रुके, चलिए आप नहीं, लेट अस सपोज देयर इज़ अ मिस्टर एक्स, वो होटल में रुके और वो जब होटल में रुकता है उसका पेमेंट करने का कोई इरादा नहीं। ही मीन्स टू कंज्यूम द ईटेबल्स, ही मीन्स टू stay there in luxury for a long duration of time, and then he believes that he will give a false check to them and thereby he will evade payments. तो वो क्या करता है कि जब उसका स्टे ख़त्म हो जाता है होटल पे, तो वो मैनेजर को लेट अस सपोज 20,000 का चेक साइन करके दे देता है। अब उसने मान लीजिए SBI बैंक की चेक बुक से चेक बना के दिया है 20,000 का। अब आयरनी ये है कि उसके पास SBI बैंक की ब्रांच में अकाउंट है ही नहीं, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर अकाउंट होता भी तो उसके पास पैसे ही नहीं थे देने के, ठीक है? ज़ीरो बैलेंस है उसका। अब ऐसे केस में ही हैड नो इंटेंशन ऑफ पेइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। So what does it amount? It amounts to cheating for the same reason. Because from the start, he never had the intention of fulfilling his promise. और deceit or dishonest intention तो है ही। Now we come to the next illustration. A, by pledging as diamonds articles which he knows are not diamonds, intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to lend money. A cheats. ये तो बहुत समझना बहुत आसान है, फेक डायमंड्स डिलीवर करवा देना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप देख रहे हैं, ई तक के इलस्ट्रेशन अभी तक हमने जो पढ़े, एक चीज़ बहुत देख रहे हैं, डिसीट हर बार आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला था डिसीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। डिसीट बहुत ज़रूरी है चीटिंग में, और वो डिसीट कपल्ड होनी चाहिए फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। इट इज़ वेरी एसेंशियल। देन वी कम टू इलस्ट्रेशन एफ। आई थिंक ई में कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। ए इंटेंशनली डिसीव्स Z into a belief that A means to repay any money that Z may lend to him and thereby dishonestly induces Z to lend him money. A not intending to repay it, A cheats. तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन है वो शुरुआत से झूठ बोल रहा है कि मुझे लोन दे दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा बाद में, पर उसका ज़ीरो रिपे करने का इंटेंशन है। ही डजंट वांट टू रिपे इट एंड इन फैक्ट ही इज़ वेरी श्योर दैट ही वोंट पे इट। देन इन दैट सिचुएशन व्हाट इज दैट? दैट इज डिसीट। एंड ड्यू टू दिस डिसीट practiced on the complainant, the accused person has made the complainant to deliver his property, that is money in this case,
and dishonestly induced in this illustration Z to lend him money, and since he doesn't intend to repay it, that is cheating, क्योंकि यहाँ पर dishonest intention and deceit start से है. Alright, अब इस कंटेक्स्ट में मुझे आपको एक और इलस्ट्रेशन देने दीजिए. दिस इज़ अ केस ऑफ जयवर चंद चावला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2000 Criminal Law Journal, page number 3753. In this case, it was held that where the accused got loan on a false representation to the complainant that he was the owner of the shop, of which he was not, and the checks were issued by the accused, which also bounced, the offence of cheating was made out. एक तो ये बता रहे थे मैं शॉप का ओनर हूँ, जबकि ये शॉप के ओनर नहीं थे. दूसरा, जो चेक उन्होंने दी लोन सैंक्शन करवाने के लिए, वो भी चेक बाउंस हो गए क्योंकि इनके अकाउंट में बैंक बैलेंस ज़ीरो था और ये भली भांति जानते थे. सो इन दैट सिचुएशन द ऑफेंस ऑफ चीटिंग वॉज मेड आउट एंड ही वॉज हेल्ड लायबल. ये इसी इलस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में है. एक चीज़ और आपको बता दूं कि चेक बाउंस में दो लायबिलिटी लगती हैं. एक 138 की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के में, विच इज़ अ सिविल मोड, विच इज़ अ क्रिमिनल मोड ऑफ एनफोर्सिंग अ सिविल लायबिलिटी. वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, बट all it is doing is enforcing a civil liability. It is a criminal mode of enforcing a civil liability under section 138 of the Negotiable Instrument Acts. But always know that if it is proved that the accused never intended to pay from the very beginning, and for that purpose he gave a blank check or any amount in the check, then the offense of cheating would also be made out. क्योंकि अगर ये दिख गया कि चेक देते वक्त इनके दिमाग में इंटेंशन ही नहीं था रिपे करने का, तो ऑफेंस ऑफ चीटिंग भी फुलफिल हो जाएगा. बी वेरी श्योर अबाउट दैट. तो ये दोनों प्रोसीडिंग चल सकती हैं क्रिमिनल कोर्ट में. ऑलराइट, ये अक्सर ग्राउंड लिया जाता है कोर्ट में कि 138 की प्रोसीडिंग्स चलनी है तो 420 की नहीं चलनी चाहिए. कोर्ट्स इस मामले में क्लियर हैं और उन्होंने सीधे बोल दिया जहाँ पे चीटिंग का एलिमेंट इस्टेब्लिश हो जाता है कि वेर यू नेवर इंटेंडेड टू पे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन और डिसेप्शन स्टार्ट से था, तो आपने जब चेक दी तो उससे चीटिंग का भी इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो जाता है. अब वो अलग बात है जब चेक डिसऑनर होती है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की भी प्रोसीडिंग्स चल जाती हैं. ऑलराइट, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रोसीडिंग चलती हैं उसमें एक तो पहले प्रिजम्पशंस होते हैं, ठीक है, कि डिसऑनर अगर हुआ है चेक का तो इसका मतलब कोई डेब्ट या लायबिलिटी थी. और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इट इज़ अ क्रिमिनल मोड ऑफ इन्फोर्सिंग सिविल लायबिलिटी. इसका ऑब्जेक्ट वो है 138 का, टू ऑनर बैंक ट्रांजैक्शन एंड टू ऑनर चेक मोड ऑफ पेमेंट थ्रू चेक्स इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चेक्स को ट्रस्ट किया जाए, इसीलिए जब चेक बाउंस होता है तो उसकी सिविल लायबिलिटी है 138 में. बट इट डजेंट मीन कि 138 में एक लायबिलिटी है तो 420 नहीं लगेगा या 417 नहीं लगेगा, वो बिल्कुल लग जाएगा. 417 में चीटिंग सिंप्लिसिटर का पनिशमेंट है बाय द वे, जो 1 साल या फाइन या दोनों से पनिश करता है 417 में. सो दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. अब इस बात पे भी एक मुझे जजमेंट बता देने दीजिए. जोसेफ वर्सेस फिलिप जोसेफ, ये केरला हाई कोर्ट का है. और in this case it was held that where the check was issued by the drawer from an account which was closed in the year 1990, and when the account had been closed by him in 1987, the check was dishonored, then it could be possible that no offense under section 138 of the negotiable instrument was made out, but the offense would still come within the purview of section 420 of the IPC. बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, अक्यूज्ड ने 2 चेक्स दिए थे. अब एक चेक उसने उस अकाउंट को लेके दिए थे जो उसने 1990 में क्लोज कर लिया था, और एक चेक उसने उस अकाउंट को देके दिए थे जिसमें उसको 97 में उसने क्लोज कर लिया था. और दोनों ही चेक आपको पता है डिसऑनर होनी थी. तो कोर्ट ने बोला कि चलिए 138 नहीं प्रूव हो पाया क्योंकि उस फैक्ट्स में कुछ पेक्यूलियरिटी थी और सिविल साइड पे कई सिचुएशंस अराइज हो गई जिस वजह से 138 का मैटर डिसमिस हो गया. पर कोर्ट ने कहा 138 डिसमिस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि 420 नहीं साबित होगा. आपने क्लोज्ड अकाउंट पे चेक काटी, इसका मतलब आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन स्टार्ट से था. इसका मतलब था यू इंटेंड टू डिसीट, आपका डिसीविंग का इंटेंशन शुरुआत से था. एंड सिंस यू इंटेंडेड टू डिसीव,
and you coupled that deceit with dishonest intention, then the offense of cheating would be made out, and that comes within the purview of section 420 of the IPC punishment के टर्म में. इस पॉइंट पे एक और जजमेंट मैं आपको बताता हूँ. OPTS मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. अब इसमें क्या ले डाउन हुआ था, दैट इवन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 420 ऑफ IPC इज मेंटेनेबल in the case of dishonor of the check or post-dated checks issued towards payment of price of the goods purchased or hand loan taken, or in discharge of an antecedent debt, or towards payments of the goods supplied earlier. If the charge sheet contains an allegation that the accused had dishonest intention not to pay even at the time of the issuance of check, and the act of issuing the check, which was dishonored, caused damage to his mind, body, or reputation, the private complaint or an FIR alleging the offense under 420 IPC for dishonor of checks or post-dated checks cannot be quashed under section 482 of the CRPC if the averments in the complaint show that the accused had, with dishonest intention and to cause damage to his mind, body, or reputation, issued checks which was not honored and which the accused was sure which will not be honored. ठीक है, तो ये लॉ बड़ा सेटल्ड है. दिस लॉ इज वेरी मच सेटल्ड ऑन दिस पॉइंट. इस पे एक और केस है, वो है स्नेहलता वर्सेस स्वास्तिका एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जलंधर. ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. अब इसमें भी वही पॉइंट हेल्ड हुआ है कि दोनों ऑफेंसेस ट्राई हो सकते हैं, 420 के भी 138 के भी. और इसमें एक और बात वही रीइटरेट की गई थी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. क्योंकि आप चीटिंग का चार्ज लगा रहे हैं, तो जब आप चीटिंग का चार्ज लगाते हैं तो चीटिंग के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने होते हैं. तो चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स तब सेटिस्फाई होते हैं जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन वेरी स्टार्ट से होता है. अगर स्टार्ट से डिसऑनेस्ट इंटेंशन या डिसेप्शन प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होगा फिर वहाँ पे, और चीटिंग नहीं एस्टैब्लिश हो पाएगी. So remember, the law that is laid down by the Supreme Court as well is the same. The Supreme Court has reiterated time and again that there should have been inducement, and either dishonestly or fraudulently, and because of this deceptive inducement, the person induced should have done or omitted to do something which he or she would not have otherwise done or omitted to do. ये एक पार्ट है. और दूसरा पार्ट ये है कि डिसेप्शन की वजह से जो कंप्लेनेंट है, ही पार्ट्स विद हिज प्रॉपर्टी, डिलीवर्स प्रॉपर्टी और कंसेंट्स टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी ड्यू टू इंड्यूसमेंट विच इज कॉज्ड बाय डिसेप्शन, एंड द स्टेट ऑफ माइंड और द मेंटरी ऑफ द अक्यूज्ड इज व्हाट, दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही हैज अ डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन. These things are very essential. So let me just tell you a 7-point principle of deception. ठीक है, किसी केस में नहीं ले डाउन किया है, ये बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 7 पॉइंट्स हैं. अब 7 पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट, दैट द डिसेप्शन इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस. इट मीन्स टू कॉज टू बिलीव अ स्टेट ऑफ अफेयर विच इज फॉल्स, मिसलीडिंग और लीडिंग इन टू एरर. इट्स अ ट्रिक और शैम कमिटेड बाय वर्ड्स और कंडक्ट. It is willful misrepresentation to mislead a person. Whether deception occurred or not is a question of fact to be decided on fact and circumstances of each case. Let me stop here right now. मैं deception को अभी बस halt पे रखता हूँ. पहले हम illustration ख़त्म कर लेते हैं वापस. तो आपने illustration F पढ़ लिया था. That A intentionally deceives Z into a belief that A means to repay any money that Z may lend to him, and thereby dishonestly induces Z to lend him money. A not intending to repay it, A cheats. Very straightforward. अब illustration G देखिए. It says that A intentionally deceives Z into a belief that A means to deliver to Z a certain quantity of indigo plant, which he does not intend to deliver, and thereby dishonestly induces Z to advance money upon the faith of such delivery. A cheats. But if A, at the time of obtaining money, intends to deliver the indigo plant and afterwards break his contract and does not deliver it,
he does not cheat but is only liable to only to a civil action for breach of contract. So देखिए जो इलस्ट्रेशन जी का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव और डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुरुआत से है. द मेंसरिया दैट इज रिक्वायर्ड बाय चीटिंग इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बट इन द लैटर पार्ट ऑफ इलस्ट्रेशन जी ऑफ सेक्शन 415 the intention to deceive or the mens rea required is not there because A at the time of obtaining money actually intends to deliver the indigo plant but afterwards break his contract due to maybe some supervening circumstances and cannot deliver it, then that is not the case of cheating because deception and dishonest intention from the very beginning is lacking. Alright, so in this case he is only liable to civil suit for breach of contract. He can sue for damages. The opposite party, that is Z, can sue for damages, but he cannot sue A in the second part of illustration G for cheating. Alright, because A is lacking the mens rea that is required by section 415. And what is that mens rea? Deceit, and due to such deceit, a fraudulent and dishonest intention, and due to these, inducement to the person to deliver any property or consent that any person shall retain any property. Alright, we'll just be confined to that for now because injury one has a bit more nuanced. We'll come to that. Now we come to illustration H. A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of a contract made with Z which he has not performed, and thereby dishonestly induces Z to pay money. A cheats. Very straightforward. धोखा दिया कि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया है जबकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया है और उसकी वजह से Z को इंड्यूस करता है कि पैसा दो. He induces Z to pay money on that he has performed his part of the contract, on that assurance. So here it is a case of cheating once again. Then we come to illustration I. A sells and conveys an estate to B. A, knowing that in consequence of such sale he has no right to property, sells or mortgages the same to Z without disclosing the fact of previous sale and conveyance to B, and receives the purchase or mortgage money from Z. A hereby cheats. जब आप प्रॉपर्टी बेच चुके हैं तो इसका मतलब अब आपको उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप या ट्रांसफ़र करने का कोई अधिकार नहीं है. पर इस इलस्ट्रेशन में ए क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो सेम प्रॉपर्टी जी को भी बेच देते हैं या मॉर्गेज कर देते हैं. तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, डिसेप्शन किया है और उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन स्टार्ट से था और उसकी वजह से ही हैज़ इंड्यूस्ड जी टू डिलीवर अ प्रॉपर्टी एंड ही हैज़ कंसील्ड अ फैक्ट ऑफ प्रीवियस सेल. तो क्या हो गया यहाँ पे भी चीटिंग हो गई. तो याद रखिएगा कि जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको इन्हीं इलस्ट्रेशन से काम चल जाएगा. ठीक है, बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट ये जो सेक्शन हैं ये आपको डिटेल में इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि बहुत रिच प्रैक्टिस इन्हीं सेक्शन से होती है. क्योंकि लार्ज कमर्शियल फर्म्स ना चीटिंग वाले मैटर में बहुत जाते हैं और साथ में क्या होता है कि प्रैक्टिस में बहुत अच्छा पैसा है इस साइड पे प्रैक्टिस करने पे. और अगर आप टेक्निकल एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विस या हायर जुडिशियल सर्विस, तो यहाँ पे चीटिंग को और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेके बहुत टफ अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे. तो आपको लॉ की पोजीशन पूरी जाननी है. अब उसका यूज़ कहाँ करना है, कितनी परसेंटेज तक करना है, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू, बट यू शुड नो द एंटायर पोजीशन ऑफ लॉ दैट इज़ अवेलेबल. ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद द सेक्शन और उसके इलस्ट्रेशन. अब हम आते हैं डिसेप्शन पे. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेप्शन क्या है, डिसेप्शन इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस. इट मीन्स टू कॉज टू बिलीव अ स्टेट ऑफ अफेयर विच इज़ फॉल्स. ऐसे अफेयर्स और ऐसी स्टेट का बिलीफ पैदा करना किसी के दिमाग में जो झूठी है, या किसी को मिसलीड करना, या किसी पर फ्रॉड कमिट करना, और टू लीड समवन इनटू एरर, दैट इज डिसेप्शन. Now it is also a trick or sham which may be committed by words or conduct. शब्दों से भी हो सकता है, कंडक्ट से भी हो सकता है. It is not just confined to words.
It is a willful misrepresentation to mislead a person. So whether a deception is occurred or not is a question of fact that you should remember, and it is to be decided on fact and circumstances of each case. Secondly, it has to be shown that misrepresentation which was made was false to the accused knowledge at the time when it was made, and the intention was to mislead a person. तो ये पॉइंट आपका वो चीज़ आंसर कर देता है कि अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये प्रूफ कैसे होगा कि उसका डिसेप्शन करने का इंटेंशन स्टार्ट से था, प्रोसिक्यूशन को ये दिखाना होगा कि जो डिसेप्शन, अजर्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन अक्यूज़ ने किया है वो शुरुआत से झूठा था फर्स्ट, और दूसरा ये कि अक्यूज्ड की नॉलेज में था. तो लेट अस सपोज एक अकाउंट जो बंद है उसको लेके अगर अक्यूज्ड एक चेक फॉरवर्ड करता है तो अक्यूज्ड की नॉलेज इम्प्लाइडली मान ली जाएगी या नहीं मान ली जाएगी? ऑफ कोर्स मानी जाएगी. सेकेंडली, अगर अक्यूज्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है और उसके बाद भी उस प्रॉपर्टी में डील करता है और किसी और को भी बेचता है, तो ये उसकी नॉलेज में है या नहीं है? तो यहाँ पे भी डिसेप्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा. सिमिलरली, जब अक्यूज्ड ने अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया है और वो जानता है, उसके बाद जब वो दूसरी पार्टी से कहता है मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, मुझे पैसा लाओ, तो ही इज़ अवेयर अबाउट द सिचुएशन दैट ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो हियर इज़ ऑल्सो डिसेप्शन. यही चीज़ें प्रोसिक्यूशन को दिखानी है. प्रोसिक्यूशन को ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि द मिसरिप्रेजेंटेशन which the accused person made was false and the accused knew about it when he made that misrepresentation. So that dishonest intention and deception is established from the very inception. That is very essential. But per contra, if the representation is made innocently, then it would not amount to deception. Like a statement which is made purely affecting future will not suffice. Let us suppose आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. अब आपको ब्रोकर बताता है कि ये टाटा के फर्म्स अच्छे चल रहे हैं, टाटा के शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, जियो के भी शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, आप टाटा और जियो के शेयर्स खरीद लीजिए. आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और शेयर खरीद लेते हैं. अब ध्यान रखिए, आपने ब्रोकर के स्टेटमेंट पे आप पूरी तरीके से चले हैं. अब आगे मान लीजिए लॉकडाउन हो जाता है और कोरोना की वजह से, तो ये ब्लैक स्वान इवेंट है, मार्केट्स पूरी क्रैश कर जाती हैं. अब आप अपना पैसा लूज़ कर देते हैं. शेयर 25% पे बिक रहा है एज अपोज टू द प्राइस ऑन विच यू बॉट. तो मतलब अगर आपने शेयर 100 रुपये का ख़रीदा है तो अब वो 25 रुपये में बिक रहा है, तो यू हैव लॉस्ट 75 रुपीज़ पर शेयर. तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो जो ब्रोकर था जिसने आपको शेयर खरीदने के लिए बोला, उसने आप पे चीटिंग कॉज की या डिसेप्शन कॉज किया? द आंसर इज़ नो, बिकॉज द ब्रोकर वॉज स्पीकिंग अबाउट द फ्यूचर इन द प्रोबेबल टर्म्स एंड बाय लुकिंग एट द market fluctuations. There was no way he could have depicted that he could have predicted that in future there would be a black swan event, and due to that black swan event the markets would crash. So in that case, it is a statement which purely affects the future and it would not suffice as cheating. एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर में अगर कुछ होना है तो वो चीटिंग का पार्ट नहीं बनेगा जनरली. ठीक है. लेट अस सपोज इफ आई से दैट यू कैन बाय दिस प्रॉपर्टी and it is expected that the price of the property would go higher as the years go by. Alright, that is the general assumption that the real estate prices increase by every year, but let us suppose they decrease. Can you say that I have cheated you? The answer is no, because there is no deception, because I am speaking on the probable matters. Now due to some unforeseen event, the future does not unravel itself the way we want it to unravel, then in that situation that cannot amount to cheating, because future itself is uncertain. ठीक है. तो statement which purely affects the future is not a part of cheating, and it cannot be termed as deception. Now we come to the third point. Deceit must have been practiced before the property is delivered.
A dishonest intention at the inception of delivery of the property is the gist of the offense. A fraudulent representation may be made directly or indirectly. Indirectly means through an agent. ठीक है. Let us suppose कि there is this चिट फंड मैनेजर, वो खूब एजेंट्स लगाता है, वो एक फ्रॉड चिट फंड है, वो ऐसे पैसा कलेक्ट करना चाह रहा है और वो सबके पास जाता है और स्कीम बताता है अपनी कि एक दिन में पैसा डबल. अब ध्यान, एक बात आपको वार्निंग दे दूँ, अगर कोई भी आपके पास ऐसी स्कीम लेके आ जाए ना तो कभी भी वहाँ पे इन्वेस्ट मत करिएगा. ऐसी कोई भी स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में. खैर, वो लोग पहुँच गए मार्केट में, एजेंट्स, उस चिट फंड मैनेजर के स्कीम बताने कि एक दिन में पैसा डबल. अब कई लोग उस चिट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एजेंट्स. तो देखिए, प्रोसिक्यूशन तो सबका होगा. तो अब अगर मान लीजिए मैनेजर का भी, चिट फंड के मैनेजर का भी प्रोसिक्यूशन होता है, तो मैनेजर अगर ये पॉइंट ले कि मैंने तो इन लोग को डिसीव किया नहीं, एजेंट ने डिसीव किया, तो एजेंट की लायबिलिटी रखिए, तो लॉ कहेगा नहीं, एजेंट किसके बिहाफ पे काम कर रहे थे, आपके बिहाफ पे काम कर रहे थे ना, देन यू वुड बी लायबल. एंड सिंस यू स्टार्टेड दिस डिसेप्शन एंड यू मेड योर एजेंट्स कैरी आउट द डिसेप्शन, देन यू वुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स आर सेटिस्फाइड. अभी मैं सिर्फ डिसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. ये डिसेप्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है. दिस इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस. और उसके बाद मेंस रे आती है अक्यूज्ड की, क्या, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन. Now we come to the fifth point. Mere fact that fraud played could have been easily detected is no defense to the charge. सिर्फ ये फैक्ट कि जो फ्रॉड जो प्ले किया गया है वो डिटेक्ट हो जाता अगर कंप्लेनेंट थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहता, तो ये कोई डिफेंस नहीं है चार्ज का. However, where the complainant discovers deceptions and yet continues with the transaction, then the accused cannot be held liable for cheating. अगर मान लीजिए कंप्लेनेंट को रियल स्टेट ऑफ अफेयर पता है, पूरी नॉलेज में है, उसके बाद भी वो ट्रांजैक्शन से आगे बढ़ता है, then that would not amount to cheating. Now let us suppose A जो है B को धोखा देना चाहता है और B को बोलता है कि मेरे पास 3 फैक्ट्रियाँ हैं और वो 3 फैक्ट्रियों की लोकेशन है XYZ. लेट अस सपोज. अब जो B है, B को पता है कि इसके पास सिर्फ 2 फैक्ट्री हैं, X और Y, पर Z वाली लोकेशन की प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है, उसकी फैक्ट्री इसके पास नहीं है. पर B ये बात जानता है कि जो X और Y हैं ये काफ़ी प्रॉफिटेबल फैक्ट्रीज़ हैं, तो चलो इसी ट्रांजैक्शन से आगे बढ़ते हैं. वो ट्रांजैक्शन से आगे बढ़ जाता है, पैसा दे देता है तीनों फैक्ट्री का. फिर उसे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि ही कैन एक्चुअली कंपेल ए इन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड गेट बैक ऑल ऑफ हिज मनी. उसने ये प्लान बनाया बी ने. अब बी जो है ए को प्रोसिक्यूट कर देता है कि मैं तुम्हें चीटिंग के लिए प्रोसिक्यूट कर रहा हूँ और मेरा पैसा पूरा वापस लाओ, क्योंकि तुमने तो मुझे 3 फैक्ट्री बेचने को कहा था और तुमने बेची हैं 2, क्योंकि तुम ओनर सिर्फ 2 के थे. अब अगर अक्यूज ने यह दिखा दिया कि कंप्लेनेंट को पूरी तरीके से पता था कि रियल पोजीशन या रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, तो डिसेप्शन नहीं कहा जा सकता. एंड सिंस द डिसेप्शन इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस, द प्रोसिक्यूशन फॉर चीटिंग वुड फॉल डाउन. याद रखिए, जब आपको सच्चाई पता है तो आप डिसीव नहीं हो सकते, है ना. अगर आप अपने आप को बी की पोजीशन में रख दें और आपको पता है कि जो जी की फैक्ट्री है वो ए को बिलोंग ही नहीं करती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि यू हैव बीन डिसीव्ड? नो. अगर आपको नहीं पता होता तो डिसेप्शन होता, पर जबकि आपको सच पता है तो वो डिसेप्शन नहीं है. अब एक इंग्लिश केस आपको इस बात पे बता दूं, आर वर्सेस मिलर का है. ठीक है. अब कई ऑथर्स इसको बताएंगे कि इट डिफर्स फ्रॉम इंडियन लॉ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग. आर वर्सेस मिलर में एक बड़ी खास बात थी. लेट मी जस्ट टेल यू द फैक्ट्स एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस इट. So in this case what happened, that the accused falsely represented himself to be a taxi driver. The complainant suspected that he might not be a taxi driver
and yet he still paid exorbitant charges. Now, in this case, the court held that a deception was the cause of the payment and it is irrelevant that the complainant has suspicions. तो इस केस लॉ के बेसिस पे कई ऑथर्स ने लिख दिया है कि इंग्लिश लॉ डिफ़र करता है इंडियन लॉ से इस मामले में, क्योंकि अगर इंग्लिश लॉ में अगर आप सब्सिक्वेंटली ट्रुथ जान भी जाएं या आप शुरुआत से ट्रुथ जानते भी हैं तब भी चीटिंग नहीं कहलाएगी, जबकि इंडियन लॉ कहता है, सॉरी ये इंग्लिश लॉ की नहीं, इंडियन लॉ की सिचुएशन। इंडियन लॉ की सिचुएशन ये है कि अगर आप शुरुआत से ट्रुथ जानते हैं या आप शुरुआत से जानते हैं कि आपके ऊपर डिसेप्शन प्रैक्टिस हो रहा है एंड यू नो द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो इंडियन लॉ कहता है कि आपके ऊपर चीटिंग नहीं है। और ऑथर्स ने इंग्लिश लॉ के कंटेक्स्ट में ये लिखा है कि इंग्लिश लॉ में ये बात इरेलेवेंट होती है कि आप सच जानते हैं या नहीं। अब आर वर्सेस मिलर के जब आप पूरे फैक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि यहाँ पे सस्पिशन था, शक था। आर वर्सेस मिलर में अक्यूज्ड पर्सन को पूरी तरीके से ये नहीं पता था कि ये सच में ड्राइवर है या नहीं, उसको सिर्फ सस्पिशन था, शक था। अब उसने ट्रायल के दौरान अपनी टेस्टिमनी में बोला कि आई बिलीव एंड आई हैड माई सस्पिशंस दैट ही वॉज नॉट अ टैक्सी ड्राइवर बिकॉज हिज कंडक्ट was such that I was led to believe that he might not be a taxi driver. तो वो सस्पिशन के रेल में था, he was not sure of it, he had suspicions. तो उसके बेसिस पे कई ऑथर्स ने लिख दिया कि इंग्लिश लॉ डिफर करता है टोटली आर वर्सेस मिलर पे। आई थिंक दैट इज क्वाइट स्ट्रेचिंग द रेशियो ऑफ आर वर्सेस मिलर, दैट इज नॉट द करेक्ट पोजिशन। आर वर्सेस मिलर में सिर्फ अक्यूज्ड को, सिर्फ कंप्लेनेंट को शक था, वो श्योर नहीं था, उसको शक था। इंडियन लॉ में ये है कि व्हेन यू आर फुली अवेयर अबाउट द ट्रुथ देन हाउ कैन यू से दैट द डिसेप्शन हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड अपॉन यू। जब आपको पूरी तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन पता है तो डिसेप्शन कैसे हो सकता है आप पे? नहीं हो सकता है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सस्पेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ श्योरिटी। ठीक है, सस्पेशन को श्योरिटी से कंफर्म नहीं करना चाहिए। इंग्लिश लॉ में क्या है कि आर वर्सेस मिलर को देख के कई ऑथर्स ने बोल दिया कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ इस बात पे अलग है। आई विल डिसएग्री विद दैट, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ये देखा गया है कि जहाँ पे कंप्लेनेंट को पूरी तरीके से पता है रियल सिचुएशन क्या है, तो वहाँ पे भी डिसेप्शन नहीं माना गया है। ठीक है, मतलब इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ इस बात पे कोइंसाइड करते हैं कि जहाँ पे कंप्लेनेंट को श्योरिटी है कि जो रियल पोजीशन है या रियल स्टेट ऑफ अफेयर हैं वो पूरी तरीके से कंप्लेनेंट की नॉलेज में है, जो पूरी तरीके से विक्टिम की नॉलेज में है, तो वहाँ पे चीटिंग नहीं हो सकती। येट सम ऑथर्स हैव स्टिल आर होल्डिंग दैट ड्यू टू आर वर्सेस मिलर वेयर द कंप्लेनेंट हैड सस्पिशन दैट द अक्यूज्ड पर्सन वाज नॉट अ ड्राइवर and it turned out that he was not actually the taxi driver and yet he paid the exorbitant charges, then even then the cheating would be established and it would be irrelevant that the complainant had suspicions later. ठीक है, तो आर वर्सेस मिलर को थोड़ा डिस्टिंग्विश करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि सस्पिशन को आप श्योरिटी से कंफ्यूज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आपको इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि शुरुआत से नहीं पता था अक्यूज्ड को, शुरुआत से नहीं पता था कंप्लेनेंट को कि ये टैक्सी ड्राइवर नहीं है। वो तो जब गाड़ी में बैठा उसके बाद बीच रास्ते में उसको थोड़ा शक हुआ कि ये लग नहीं रहा टैक्सी ड्राइवर, इसका कंडक्ट लग नहीं रहा टैक्सी ड्राइवर जैसा। सो इट कुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू श्योरिटी। सस्पिशन इज नॉट सिनोनिमस विथ श्योरिटी, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर ऑफ दैट। ठीक है, सस्पिशन इज नॉट सिनोनिमस विथ श्योरिटी। तो आर वर्सेस मिलर थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड है एंड personally I would disagree with the position that Indian law and English law differs on this point. ठीक है, it doesn't differ on this point. Suspicion is not surety. Indian law की position ये है कि where the complainant discovers the deception and yet continues with the transaction, then the accused cannot be held liable for cheating. तो discovery of deception का मतलब क्या है कि the complainant is very sure, वो sure है कि ये डिसेप्शन है
एंड ही इज़ नाउ अवेयर अबाउट द ट्रू पोजिशन। जब वो ट्रू पोजिशन या ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स जान गया है तब चीटिंग नहीं कहला सकता। सिमिलरली इंग्लिश लॉ में भी ऐसा ही होगा, बट आर वर्सेस मिलर में सस्पिशन को श्योरिटी मान लिया है कुछ ऑथर्स ने, एंड दैट इज़ नॉट द करेक्ट पोजिशन। ठीक है, ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए बता रहा हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, और एकेडमिक पर्पस के लिए बता रहा हूँ। यू डू नॉट हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज थीसिस इन एग्जाम्स, ये बस आपकी नॉलेज के लिए है। वहाँ पे एग्ज़ाम में सिर्फ इंडियन लॉ की पोजीशन लिखिए, इंग्लिश लॉ की लिखने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक पूछा ना जाए। नाउ लेट मी टेल यू द सिक्स्थ पोजीशन ऑन डिसेप्शन, द सिक्स्थ प्रिंसिपल। The offense of cheating is not committed if a third party on whom no deception has been practiced sustains pecuniary loss in the consequence of the accused act. Now, इस पे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि अगर थर्ड पार्टी को इंजरी हो जाए जिस पे डिसेप्शन प्रैक्टिस भी नहीं हुआ है और जिसको लेके डिसऑनेस्ट अटेंशन भी नहीं है, तो क्या वो चीटिंग में आएगा या नहीं आएगा? द आंसर इज कि वो नहीं आएगा। लेट मी गिव एन इलस्ट्रेशन ऑन दैट पॉइंट। नाउ लेट अस सपोज A is trying to deceive B and he's saying that you need to buy the estate of F because there is a gold mine beneath the estate of F. अब ये कहता है कि मैं F की प्रॉपर्टी का एजेंट हूँ और वो B को बोल रहा है कि F का एस्टेट खरीद लो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी खरीद लो। एस्टेट ESTATE वाला एस्टेट है, ये राज्य वाला एस्टेट नहीं है, ये प्रॉपर्टी वाला एस्टेट है। तो ए बोलता है बी से उसको डिसीव करने के लिए कि एफ का एस्टेट खरीद लो क्योंकि उस एस्टेट के नीचे गोल्ड माइन है। अब सी जो है दूर से सुन रहा है ये सारी बातें। सी को मन करता है कि अरे यार मैं जाके खरीद लेता हूँ एफ से सीधे प्रॉपर्टी, उसकी गोल्ड माइन का फिर मैं मालिक हो जाऊँगा। तो ए बी को डिसीव करना चाह रहा है और बी उस पर नेगोशिएशंस कर रहा है। इतने में सी जाते हैं सीधे एफ के पास, प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर देते हैं और प्रॉपर्टी उसे खरीद लेते हैं 4 करोड़ में। टर्न्स आउट एफ की प्रॉपर्टी के नीचे कोई गोल्ड माइन नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो सी हैं वो ए को प्रोसिक्यूट कर देते हैं और लेट अस सपोज एफ को भी प्रोसिक्यूट कर देते हैं कि भाई आप लोग ने मुझे चीट किया, वहाँ पे गोल्ड माइन की बात हो रही थी। तो आंसर इसका ये होगा कि भाई आप पे तो डिसेप्शन प्रैक्टिस नहीं हुआ, आप कहाँ से आ गए? आप थर्ड पार्टी है ना, आप पे तो कोई डिसेप्शन भी प्रैक्टिस नहीं हुआ। अगर आपने कोई बातें सुन के खुद ही एक्शन ले लिया तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। द ऑफेंस ऑफ चीटिंग इज नॉट कमिटेड इफ अ थर्ड पार्टी जिस पर डिसेप्शन ही प्रैक्टिस नहीं हुआ है ही सस्टेन्स अ पेक्यूनरी लॉस ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अक्यूज्ड एक्ट। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर ए बी को डिसीव ना करना चाह रहा होता तो सी ईव्सड्रॉप ना करता, है ना, और वो ऐसी बातें ना सुनता। ध्यान रखिए ये बहुत ही इनडायरेक्ट कॉज है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट कॉज, इट इज़ अ कॉजा साइन qua non, नॉट कॉजा कॉजांस। और आपको पता होना चाहिए कि देयर हैज़ टू बी अ डायरेक्ट लिंक, जिसको कहते हैं कॉजा कॉजांस, दैट हैज़ टू बी देयर, नॉट द एसेंशियल कॉज। तो अगर ए बी को डिसीव कर रहा है और सी डिसीव हो जाते हैं जिन पर डिसेप्शन प्रैक्टिस ही नहीं किया जा रहा, या जिनके बारे में पता भी नहीं कि वो ईव्सड्रॉप कर रहे हैं, और वो डिसीव होके पेक्यूनरी लॉस सफ़र करते हैं, देन दैट इज़ एंटायरली सी फॉल्ट, दैट इज़ एंटायरली सीज फॉल्ट, एंड अक्यूज्ड ए इन दिस इलस्ट्रेशन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। तो याद रखिएगा सिक्स्थ प्रिंसिपल, ऑफेंस ऑफ चीटिंग इज नॉट कमिटेड इफ अ थर्ड पार्टी ऑन whom no deception has been practiced sustains pecuniary loss in the consequence of the accused act. Now I come to the seventh principle, that one may attempt to cheat although the person one attempts to cheat is forewarned and is therefore not cheated. So this position is that where a person knows that a statement which is made by another person is false but still acts upon them with a view to entrap that person, then the accused can only be held for guilty of attempt to cheat. Okay, now let me explain you by the way of an illustration. If let us suppose a person buys milk knowing it to be watered in order to prosecute the seller for the offense of adultering milk with water, then that would only amount attempt to cheat, not actual cheating. वो actual cheating में नहीं जा सकता
क्योंकि चीट आप हुए नहीं हैं। अब अक्यूज ने आपको चीट करना चाहा पर कर नहीं पाया, तो दैट वुड अमाउंट टू अटेम्प्ट टू चीट। क्योंकि अगर आपको ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर ना पता होता, अगर आपको ना पता होता कि मिल्क में पानी मिला है 50%, तो दैट वुड बी टोटल चीटिंग, क्योंकि आपको नहीं पता था और आपने खरीद लिया। पर यहाँ पे आपको पता है कि इसमें पानी मिला है, आप सिर्फ अक्यूज को ट्रैप करना चाहते हो, और ट्रैप करने के लिए आपने उससे वो वाटर्ड मिल्क खरीदा, और जैसे ही उसने आपको बेचा आपने उसे धर लिया। सो दैट वुड अमाउंट टू वॉट? दैट वुड ओनली अमाउंट टू अटेम्प्ट टू चीट, क्योंकि आप चीट नहीं हुए। आपने वो जो पूरा ट्रांजैक्शन जो रचा आफ्टर नोइंग द ट्रू पोजिशन, दैट वुड ओनली अमाउंट टू अटेम्प्ट टू चीट, क्योंकि अक्यूज आपको चीट करना चाह रहा था, बट सिंस यू न्यू अबाउट द ट्रू पोजिशन यू कैन नॉट बी चीटेड। Similarly, let us suppose a position where the accused says to the complainant that he knows how to double the currency note. अब complainant को पता है कि he does not believe कि ये accused currency note को दुगना कर पाएगा, पर फिर भी उसे currency note दे देता है with a view to trap him, कि नहीं कर पाया तो उसको मैं पकड़ लूँगा और prosecute कर दूँगा। तो ऐसी चीज़ में अगर कंप्लेनेंट को पता है फॉल्स प्रिटेंस चल रहा है, एंड द अक्यूज पर्सन कैन नॉट, दैट द अक्यूज पर्सन हु इज आस्किंग फॉर करेंसी नोट्स कैन नॉट डबल इट, देन दैट वुड ऑल्सो अमाउंट टू अटेम्प्ट टू चीट। ये भी अटेम्प्ट टू चीट में जाएगा, बिकॉज यू न्यू दैट द अक्यूज इज मेकिंग अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बिफोर यू, बट विद अ व्यू टू इंट्रैप हिम यू ह्यूमर्ड हिम। ठीक है। Now let me tell you one thing, that mere puffing of goods does not amount to cheating. ठीक है। puffing of goods का क्या मतलब है? puffing of goods का मतलब है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो सेलर्स हैं अपने गुड्स को एग्जैजरेट करके बताते हैं। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि एडवर्टिजमेंट आप देख रहे हैं, च्यवनप्राश का ऐड आ रहा है, उसमें लिखा इम्यूनिटी नंबर 1, तो वो पफिंग ऑफ गुड्स है। अब मान लीजिए उसको खाने के बाद इम्यूनिटी नंबर 1 नहीं होती है, तो आप क्या च्यवनप्राश के ओनर्स को प्रोसिक्यूट कर देंगे उसके लिए, चीटिंग के लिए? द आंसर इज़ नो, बिकॉज द अनट्रू प्रेज ऑफ द गुड्स विच इज़ ओनली मेंट फॉर सेल डज नॉट अमाउंट टू चीटिंग। अब आप कितनी जगह पे जाइए, सब अपने आप को नंबर 1 कहने लगते हैं। नंबर 1 आइसक्रीम पार्लर, नंबर 1 गेमिंग पार्लर। तो वो नंबर 1 और ये जो रैंक बता रहे हैं इररेलेवेंट है। दे आर मेरली देयर टू प्रेज द गुड्स और टू प्रेज द सर्विसेज, एंड दैट डज नॉट अमाउंट टू चीटिंग बाय इटसेल्फ। इप्सो फैक्टो दैट डज नॉट अमाउंट टू चीटिंग। In this connection, a reference may be made to the comments of God. He is an author of Penal Law and 10th edition, page number 3644. In that, he says that the case of a tradesman puffing off his goods and thereby inducing to pay a higher price is not deception, because such a praise is quite common, of which every buyer is and should be aware. It cannot be said that he is induced to purchase goods by such deception. Right? अब सब्जी वाले के पास आप सब्जी खरीदने जाते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि सब्जी वाले से पूछो भाई सब्जी ताज़ा है, वो कहेगा भाई बिल्कुल ताज़ा है, तुरंत अभी मैं मंडी से लाया हूँ। ऐसी बातें करता है। लेट अस सपोज आप चेक भी करने लगते हैं कि मंडी से लाया है या नहीं। लेट अस सपोज सब्जी में से कुछ बासी निकल आता है, तो वुड यू प्रोसिक्यूट हिम फॉर चीटिंग? द आंसर इज़ नो, क्योंकि वो पफिंग ऑफ गुड्स चल रहा है। दैट इज़ नॉट डिसेप्शन। मियर पफिंग ऑफ गुड्स इज़ नॉट डिसेप्शन। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक केस इस पॉइंट पे बताता हूँ, लोकस क्लासिकस से काफ़ी पुराना है। मोहम्मद इब्राहिम हाजी मौला बख्श वर्सेस TCR नेटन। अब इसमें कंप्लेनेंट हैड वेरी हाई होप्स ऑफ बीइंग हेल्ड आउट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बिजनेस. He entered into a partnership with the opposing party and invested a large sum of money. The complainant at all time had access to the business books and also participated in the management of business. The high hopes held out by the directors was not fulfilled and the business ended in considerable loss. Now the complainant was very angry that आपने तो ये बोला था कि बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत ये होगा,
और बहुत हम लोग कमाएंगे, हम लोग नंबर 1 कंपनी है, हमारी गुडविल ये है वो है, और हुआ कुछ नहीं, हुआ हमारा लॉस। तो जब उसने डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को चार्ज किया चीटिंग से, तो कोर्ट ने बोला कि देर वॉज नो ऑफेंस ऑफ चीटिंग फॉर 2 रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे वर पफिंग अप देयर गुड्स, वो जो गुड्स बेचने की बात हो रही थी उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे, एंड एवरी वन शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सेकेंडली, वो फ्यूचर की बात कर रहे थे, एंड यू नो द फ्यूचर इज अनसर्टेन, राइट? Whatever is relevant right now might not be relevant next day, right? So that is why the Sindh High Court said that no offense was of cheating was made out. अब ये illustrative cases हैं, इसमें आपको केस का नाम नहीं याद करना, आपको बस illustration के पर्पज़ के लिए इस चीज़ें समझनी है। इंग्रेडिएंट्स और वेयर एक्ट का सेक्शन आप याद कर लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के 2007, 2000, 2014 इन सारे ईयर के जजमेंट याद कर लीजिए, दैट इज़ मोस्ट रेलिवेंट। इलस्ट्रेशन का पर्पस है आपको एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन समझाना। अब नाउ लेट मी टेल यू वन मोर केस, मोंगटिन वर्सेस एम्परर। अब यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर वॉज अप्लाइड। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, और उसमें एक ज्वेलरी को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला गया था, ज्वेलरी बहुत अच्छी है, सब लोग इम्प्रेस हो जाएंगे जब आप ये ज्वेलरी पहनेंगे। कोई इम्प्रेस नहीं हुआ उस ज्वेलरी को पहनने के बाद, तो वहाँ पे उन्होंने चीटिंग का चार्ज लगा दिया, अटेम्प्ट टू चीट का चार्ज लगाया था एक्चुअली। हाई कोर्ट ने उसको क्वाश कर दिया। उसने बोला था कि बायर शुड हैव बीन अवेयर अबाउट दिस पोजीशन दैट दिस इज़ अ मेयर पफिंग ऑफ गुड्स एंड दिस कैन नॉट बी हेल्ड टू बी अटेम्प्ट टू चीट। बट ये तो मैंने बता दिया अब आपको। अब मुझे एक लाइन बताने दीजिए कि अगर आपने इस लाइन को क्रॉस किया तो पफिंग ऑफ गुड्स डिसेप्शन में तब्दील हो जाता है। देखिए, लिमिट्स भी होती हैं हर चीज़ की, कि पफिंग ऑफ गुड्स का अनलिमिटेड स्कोप नहीं होता, देयर इज़ अ लाइन टू बी ड्रॉन। इफ द गुड्स सोल्ड आर ऑफ एन entirely different description from what is it is represented, and the statement made are not in form of an expression of opinion or mere praise, but as a specific fact within the knowledge of the accused, then the offense of cheating would be committed. Now, what do I mean by that? Now, let us suppose you are in a shop and it is a jeweler's shop. Now, you go there and you ask the jeweler for a gold ingot of 21 कैरेट। ठीक है, 21 कैरेट का आपको गोल्ड इंगट चाहिए। अब यू आर नॉट अवेयर अबाउट द पोजीशन ऑफ द गोल्ड। ठीक है, अब आपको थोड़ी ना पता है कितने कैरेट का है कितने कैरेट का नहीं है, वो तो जो भी ज्वेलर बोल देगा मान लोगे, अनलेस ऑफ कोर्स कि यू हैव अ प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो आप शॉप पे जाते हैं, आप 21 कैरेट का गोल्ड इंगट मांगते हैं या गोल्ड चेन मांगते हैं। ज्वेलर ये देखते हुए कि यू डू नॉट हैव क्वाइट एन एक्सपीरियंस and you are not aware as to how do you measure carats, so what he does, he actually sells you a gold ingot or a gold chain which is actually of 11 carat। तो यहाँ पे जो गुड्स आपको बेचे गए, पहली बात तो वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के हैं, क्योंकि कैरेट की क्वालिटी से प्राइस डिटरमाइन होता है, आपको लोअर क्वालिटी का गुड्स बेचा गया है। सेकेंडली, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन या मियर प्रेज नहीं है जो पफिंग ऑफ गुड्स में आता है, बट इट इज अ स्पेसिफिक फैक्ट विद इन द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड। नाउ दिस वुड अमाउंट टू चीटिंग। ऑलराइट, सिमिलरली लेट अस सपोज यू बाय अ डायमंड रिंग of 15 carats and the diamond ring sold to you is of 2 carats, that would amount to what? That would also amount to cheating. That is not a matter of expression of opinion. That is a specific fact which is in the knowledge of the accused. तो पफिंग ऑफ गुड्स के अंदर ओपिनियन होता है और प्रेज होती है, बट अगर गुड्स आपको डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के ही बेच दिए जाएं और वो एक स्पेसिफिक फैक्चुअल चीज़ है जो अक्यूज्ड की नॉलेज में है, देन दैट वुड अमाउंट टू चीटिंग। एक लाइन ड्रॉन है दोनों के बीच। ऑलराइट, तो ये मत समझ लीजिएगा कि पफिंग ऑफ द गुड्स के नाम पे बाकायदा स्ट्रेट फॉरवर्ड झूठ बोला जा सकता है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली एक सिचुएशन इमेजिन करिए, ये केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का, अली हुसैन एंड अदर वर्सेस एम्परर। अब इसमें अक्यूज जो थे वो खाकी शर्ट पहन के आ गए और कंप्लेनेंट को पकड़ लिया और बोला कि मैं तुझे थाने ले चलता हूँ।
और फिर कंप्लेनेंट ने इनको प्रोसिक्यूट कर दिया चीटिंग के लिए। अब अक्यूज पर्सन क्या बोलते हैं कि मेरा चीट करने का इंटेंशन नहीं था, इनको अवेयर होना चाहिए था, दुनिया भर की इन्होंने बात करी। तो कोर्ट ने बोला खाकी शर्ट पहन के आके आप थाने ले जाने की बात कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में आके, तो इसका मतलब है कि आप ये दिखाना चाह रहे थे अक्यूज्ड को कि यू हैव द अथॉरिटी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर और यू आर द पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ एंड यू नेवर पोजेस दैट अथॉरिटी, दैट अमाउंटेड टू डिसेप्शन। ठीक है, वाई? बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक फैक्ट विद इन द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड। तो बेसिकली आप 7 पॉइंट प्रिंसिपल समझ गए होंगे, सॉरी 8 पॉइंट प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। पफिंग ऑफ गुड्स को मैंने 8वां पॉइंट रखा था। सो दिस वुड बी विद इन योर नॉलेज। अब मैं आपको चीटिंग को लेके जनरली कुछ इलस्ट्रेशंस दे देता हूँ। इन अ केस दैट इज खैराती राम वर्सेस स्टेट, it was a case of Delhi High Court. It is an illustrative case on this point that the accused person was a different person than the payee indicated in the money order, and he obtained payments on those money ordered by producing an identity card purporting to be that of the payee but had his own photograph pasted upon it and signed it as the payee. He was held guilty of cheating and forgery. Now if you don't understand it, अब इन्होंने एक फॉर्ज्ड आइडेंटिटी कार्ड बनाया पेई का, ठीक है, मनी ऑर्डर पे। तो दूसरी पार्टी जो थी उसने सोचा कि अच्छा इसी को पे करना है, तो वो पेमेंट वहाँ पे करने लगे। अक्यूज न्यू दैट ही वॉज नॉट द पेई और उन्होंने पूरी फॉर्जरी की थी जस्ट टू मेक श्योर कि सारा पेमेंट उस मनी ऑर्डर पे उन्हीं की तरफ आए। दैट अमाउंटेड टू चीटिंग एंड फॉर्जरी। सिमिलरली वेयर एन अक्यूज पर्सन actually obtained some utensils from the complainant and the accused person represented to the complainant that he would repair the same, and the accused neither repaired nor returned the utensils, then that would amount to deception and consequently it also amounts to cheating. Now I have to come on second essential requirement of cheating, that is fraud or dishonest intention. So let me reiterate the definition of fraudulently. आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसे समझाया था। So always remember that the expression defraud involves two elements. First deceit and then injury to the person deceived. तो defraud में दो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, डिसेप्शन या डिसीट और इंजरी। अब इंजरी क्या होती है? इंजरी इज डैमेज और हार्म टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। एंड इंजरी इज समथिंग अदर देन इकोनॉमिक लॉस, दैट इज deprivation of the property, whether movable or immovable or of money, and it will include any harm whatever caused to any person in body, mind, reputation or such other. In short, it is a non-economic or non-pecuniary loss which is within the ambit of the expression defraud. A benefit or advantage to the deceiver will almost always cause loss or detriment to the deceived, even in those rare cases where there is benefit or advantage to the deceiver but no corresponding loss to the deceived, the second condition is satisfied. ये जो मैंने रेशियो अभी आपको बताया, जो डेफिनेशन अभी आपको बताई, वो डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच वॉज डिसाइडेड ऑन 29 नवंबर 1962, उसमें जो डेफिनेशन होल्ड की गई है वो बताया। और यही फ्रॉड की डेफिनेशन है क्रिमिनल लॉ में, डिफ्रॉड की डेफिनेशन यही दी गई है। इसके इस पर्पज़ के लिए स्टीफेंस लॉ डाइजेस्ट और सेवरल अदर चीज़ें रेफ़र की गई थी। ये आपके नोट्स में अवेलेबल होगा जो प्रिलिमिनरी लेक्चर्स में थे। तो डिफ्रॉड का एसेंस क्या है? डिफ्रॉड का ये एसेंस है कि पहली बार डिसीट होती है उसमें और इंजरी होती है, ठीक है। और इसमें इकोनॉमिक लॉस ही नहीं होता, इसमें नॉन इकोनॉमिक या नॉन पेक्यूनरी लॉस शामिल है। तो जनरली ये होता है, जनरली एक प्रिजम्पशन ये होता है कि जो बेनिफिट या डिसीवर जब कोई बेनिफिट या एडवांटेज लेता है तो दैट वुड ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज लॉस एंड डेट्रीमेंट टू द पर्सन हु इज़ डिसीव्ड। बट कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे डिसीवर को तो बेनिफिट होता है बट द पर्सन डिसीव्ड को कोई करस्पॉन्डिंग लॉस नहीं होता।
तो ऐसी सिचुएशन में भी डिफ्रॉड की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ये बात याद रखिएगा. नाउ व्हाई एम आई मेंशनिंग द पोजीशन ऑफ डॉक्टर विमला हियर अगेन? आई एम मेंशनिंग इट अगेन बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू कीप दिस डेफिनेशन इन माइंड while talking about fraud and dishonest intention. क्योंकि 415 में क्या एसेंशियल है डिसेप्शन के बाद? फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है. तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो आप समझ सकते हैं, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस. बट फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन क्या है? फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन दैट आई जस्ट टोल्ड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन. डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेल्ड हुई है. सो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. Section 415 requires that the person must deceive, and secondly, he must also induce another with the intention to deceive. In other words, it requires the deceiving of a person as well as inducing him with the intention to cause wrongful gain or wrongful loss. तो deceit होना तो ज़रूरी है, पर deceit करने का intention भी होना चाहिए. ठीक है? The mens rea that is required under 415 is what? Fraudulently or dishonest intention. That is very essential. Now remember that an act may be dishonest yet not fraudulent. Deception is essential for fraud, but it is not essential for dishonest intention. A dishonest intention is intention to cause wrongful gain or wrongful loss, while fraudulently involves something more than just economic injury. You're getting my point? That is why I mentioned the definition of Vimla versus Delhi administration. और इतना ही कह के काम चल जाता. मेनली क्या है, आपको ये बातें रिमेंबर रखनी है कि जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसके लिए डिसेप्शन ज़रूरी नहीं होता इन ऑल केसेस, बट फ्रॉड के लिए और फ्रॉडुलेंटली के लिए डिसेप्शन बहुत ज़रूरी होता है. देयर हैज़ टू बी एन एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन व्हेन यू आर एलिजिंग दैट चीटिंग हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ fraudulent representation of the disease, fraudulent representation of the accused person. It is very important. ठीक है? Always remember, deception is essential for fraud, but not for dishonest intention. Fraud के लिए बहुत ज़रूरी होता है deception. आपको किसी को धोखा देना है तो आप deception करते हो, but dishonest intention जो require करता है, जैसे कि आपका criminal breach of trust, misappropriation of property, आपका theft है, वहाँ पे भी dishonest intention है, पर वहाँ पे डिसेप्शन की तो कैटेगरी है नहीं. राइट? कितनी ही जगह आपने देखा होगा डिसऑनेस्ट इंटेंशन रिक्वायर्ड है, पर वहाँ पे डिसेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसलिए याद रखिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिसेप्शन हो हर केस में. इट इज़ नॉट एट ऑल एसेंशियल फॉर डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बट फॉर फ्रॉड और फ्रॉडुलेंटली, जैसा कि एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है 415 में, फ्रॉडुलेंटली के लिए डिसेप्शन बहुत ज़रूरी है. तो जब आप कंप्लेंट में एलेज करेंगे कि अ पर्सन हैज़ फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटेड दिस और दैट, तो आपको डिसेप्शन भी दिखाना पड़ेगा. ऑलराइट? क्योंकि फ्रॉडुलेंटली के लिए डिसेप्शन बहुत ज़रूरी है. लेट अस सपोज एक आदमी, आप एक ज्वेलर हैं, एक आदमी आपकी शॉप पे आए, ही कम्स विद मर्सिडीज़. ठीक है? मर्सिडीज़ अपनी लेके आए और उसके साथ उसके कई बटलर भी होते हैं. ही लुक्स लाइक अ वेरी रिच मैन, बहुत रिच क्लॉथिंग के साथ आता है. ठीक है? तो आपका पहला इंप्रेशन होगा कि ये बहुत अमीर आदमी लगता है, इसके पास महंगी गाड़ी है करोड़ों की, साथ में इसके पास कई बटलर हैं, इसके साथ कई आर्म गार्ड्स हैं. ही लुक्स लाइक सम बिग शॉट. वो आपके पास आता है, वो आपसे क्रेडिट पे कुछ गुड्स लेना चाहता है. वो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ की एनिवर्सरी के लिए एक 50 लाख की अंगूठी चाहिए. आप उसे दिखा देते हैं. अब आप उस अंगूठी से पार्ट नहीं करना चाहते विदाउट सम कैश पेमेंट, पर वो कहता है कि आई एम सो एंड सो, मैं बहुत रिच हूँ, आप ऐसा करिए कि ये चेक ले लीजिए 60 लाख का, 50 लाख के रिंग है, मैं आपको 60 लाख देता हूँ. लेट अस सपोज आप उसका बैकग्राउंड और उसकी गाड़ी देख के इम्प्रेस हो जाते हैं. आपको लगता है यार ठीक है, दे देते हैं, चेक कैश करवा लेंगे बाद में, 3 दिन ही तो लगेंगे. टर्न्स आउट कि वो जो आदमी आपकी जो शॉप पे आया था उसने किराए की गाड़ी ली थी और वो जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रहा था वो आपको डिसीव करने के लिए कर रहा था. तो यहाँ पे डिसेप्शन है और उसने आपको रॉन्गफुल लॉस करवाया है. तो ये डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में चला गया है, ये फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन में नहीं जाएगा.
बट इसी सेट ऑफ फैक्ट में फ्रॉडुलेंटली के पार्ट में क्या जाएगा मैं बताता हूँ. अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट वुड अमाउंट टू फ्रॉडुलेंटली एज वेल. तो ध्यान रखिएगा, जो फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन है, इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक लॉज, इट गोज समथिंग वे बियॉन्ड दैट. अभी हम लोग कुछ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी के केसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो आपको और क्लियर होगा. बट अंडरस्टैंड कि इस इलस्ट्रेशन में कि जब वो आपसे चेक मांगता है, जब वो आपको चेक देता है, जब वो आपको चेक देता है, कहता है कि ये 60 लाख का चेक है, ही इज़ मेकिंग यू अ प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. नाउ दैट वुड अमाउंट टू फ्रॉड. And since that would amount to fraud, and you have been induced to be parted with that particular ring because of the deception that was practiced by the accused on you, that would also satisfy the condition of fraudulently as well. तो ये illustration में दोनों condition satisfy हो जाती हैं. बट एक बात जान लीजिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के लिए डिसेप्शन ज़रूरी नहीं होता. वो मान लीजिए कि ये कोई डिसेप्शन ना करता और आपको चीट करके ले जाता प्रॉपर्टी, तो that is not at all required for dishonest intention. You can still convict him if you just show that initially from the very inception he never intended to perform his promise. But deception for the purpose of fraudulently is very very essential. ठीक है, याद रखिएगा, एक पोजीशन याद रखिएगा, डिसेप्शन इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस, बट डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसको नहीं रिक्वायर करता. चीटिंग में क्या है, चीटिंग शुरू ही डिसेप्शन से होती है. ऑलराइट, आपको 415 के इंग्रेडिएंट ऐसे समझने हैं कि 415 शुरू होगा डिसेप्शन से. अब उस डिसेप्शन की वजह से फ्रॉड होगा या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कपल्ड होके कोई एक्ट होगी, उससे कोई इंड्यूसमेंट होगा, उस इंड्यूसमेंट से प्रॉपर्टी डिलीवर होगी, उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी होगी या तो कोई कंसेंट ली जाएगी कि प्रॉपर्टी रिटेन करे कोई व्यक्ति. और अगर ये दोनों ही नहीं है तो डिसेप्शन या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ या डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ एन इंजरी हैज़ ऑकर्ड और ही हैज और द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ मेड अ कंप्लेनेंट टू डू और ओमिट टू डू विच ही वुड नॉट डू इफ़ ही वॉज अदरवाइज नॉट डिसीव्ड. ठीक है, तो इस बात को लेके अवेयर रहिएगा. मैं देखिए डिसजंक्ट करके आपको इसलिए बताता हूँ जिससे आपको ना सेक्शन थोड़ा अच्छे से समझ में आए. एग्जाम में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाइडली भी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. ये बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. बस डेफिनेशन फ्रॉडुलेंटली की याद कर लीजिएगा जो डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में दी गई है, वो एसेंशियल है. चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स याद रखिएगा. ठीक है, अब आज के लिए तो टाइम हमारे पास कम पड़ जाएगा क्योंकि मटेरियल बहुत है इस पर. हमें इलस्ट्रेटिव केसेस भी काफ़ी देखने हैं चीटिंग पे, जिससे हम चीटिंग का पूरा स्कोप ढंग से समझ पाएँ. एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि 415 शुरू होगा डिसेप्शन से. 415 शुरू ही होता है डिसेप्शन से. वी शुड बी वेरी 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 क्लियर दैट द डिसेप्शन इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस. नाउ दैट डिसेप्शन इज कपल्ड विद either fraudulent intention or dishonest intention. Now fraudulent may be something more than just economic loss. It takes within its scope any injury or damage or harm to body, mind, reputation or property, or such deception or fraudulent and dishonest intention has induced a person to part with the property, to deliver a property or to consent for the retention of property. ठीक है, so that is the main ingredient और आपको इसी main ingredient के context में चीज़ें समझनी है. इन मेन इंग्रेडिएंट से बाहर नहीं जाना. आपको ध्यान रखना है, बेयर एक्ट को जब आप समझना सीख जाएंगे, बेयर एक्ट को पढ़ना सीख जाएंगे. मैं आपको क्यों फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इतना डिटेल में बता रहा हूँ, काम इससे भी चल सकता है मैं आपको सेक्शन के इंग्रेडिएंट बता दूँ. मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको ना बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करना है, बेयर एक्ट को समझना है. अब आगे आप कई स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी, तो आप ये तो निकाल सकते हैं ना कि हाँ इसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा. इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड द वे टू एक्चुअली इंटरप्रेट अ सेक्शन आ जाए. अभी एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा. दैट इज़ वाई आई गो इनटू सच ग्रेट डिटेल्स. एग्जाम के पर्पज़ के लिए स्वेट मत करिएगा कि आपको इतना याद करना है, आपको इतना नहीं याद करना. आपको सिर्फ सेक्शन और उसके इंग्रेडिएंट याद करने हैं, 3-4 इलस्ट्रेशन देने, आपको एग्जाम में वो अच्छे नंबर मिल जाएंगे. और 1-2 केस बताते हैं लोकस क्लासिकल्स, ऐसे महादेव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बता दीजिएगा,
और एक दो और केस अभी मैं लोकस क्लासिकस डिस्कस करूँगा कल के लेक्चर में, वो बता दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। बट एकेडमिक पर्पस के लिए, प्रैक्टिसिंग पर्पस के लिए और सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपको चीज़ें काफ़ी डिटेल में आनी चाहिए। इंटरव्यू के भी पर्पस के लिए आपको चीज़ें काफ़ी डिटेल में आनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, देन यू आर एबल टू आंसर इट। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए तो हम लोग इतना ही करेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, डिसेप्शन, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और जो लैटर पार्ट है ना चीटिंग का, डैमेज और हार्म टू बॉडी माइंड और प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, जो इंजरी को, जिसको मैं सीधे कह देता हूँ आप इंजरी लिख दीजिए, वो चीज़ें आप ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी के केस लॉ पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी की एक पेक्युलर सिचुएशन होती है, वो रेप में भी जाता है। अगर promise to marry is false from the very inception and the accused fully knows that he has no intention of performing it, वो रेप में भी चला जाता है। वो आपको कंसेंट वाला पार्ट याद होगा, और उसका छोटा सा पार्ट चीटिंग में भी जाता है। चीटिंग में भी कन्विक्शन होता है, तो दो में कन्विक्शन होता है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी के केसेस में। तो आपको याद होगा कि रेप के ऑफेंसेस जब मैं डील कर रहा था, तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट वहाँ पे ये भी बताया होगा कि ये चीटिंग में भी जाता है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी वाला पार्ट। अब उसका सेकेंड पार्ट मैं आपको कल बताऊंगा फ्रॉडुलेंटी के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या होता है। जैसे उसमें कई केस हैं, आपको नोट्स में अभी दे दूंगा, आप चाहें तो अभी रीड कर लें। जैसे रविचंद्र मरिमल, चित्रा वर्सेस रवि कुमार, और अभय प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जयंती रानी पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हरी मांझी वर्सेस स्टेट। तो ये जो जजमेंट्स हैं ना, ये सारे इन्हीं पॉइंट्स पे हैं। चीटिंग में जहाँ पे कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, किन फैक्ट्स पे होना है, किन फैक्ट्स पे नहीं होना है, ये इलस्ट्रेटिव केसेस का पार्ट है। सो ऑलवेज रिमेंबर, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, चीटिंग विल स्टार्ट विद डिसेप्शन। चीटिंग स्टार्ट ही होगी डिसेप्शन से। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं ना 415 की डेफिनेशन, वहाँ पे क्या लिखा है, whoever by cheating by deceiving any person, कॉमा, डिसीविंग एनी पर्सन को कॉमन रखा गया है, फिर बताते हैं फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, चाहे फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, पर डिसीविंग के बाद और नहीं लगा है। 415 में डिसीविंग के बाद और नहीं लगा है। इसका क्या मतलब है कि फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से पहले डिसेप्शन होना चाहिए। ये चीटिंग के लिए एसेंशियल है। ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के लिए डिसेप्शन नहीं ज़रूरी है, लेकिन चीटिंग के लिए ज़रूरी है कि डिसेप्शन होना चाहिए, और फिर मेंसरिया होनी चाहिए कौन सी, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली की। एंड दैट शुड इंड्यूस अ पर्सन टू डू व्हाट, टू डिलीवर अ प्रॉपर्टी, टू कंसेंट टू रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, और इंड्यूस अ पर्सन टू डू और omit to do anything which he would not do if he was not deceived, and the act or omission causes or likely to cause damage or harm to body, mind, reputation और property। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है चीटिंग की, पर कितने नुआंसेस है इसमें, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड सिंस वी आर इन द लास्ट पार्ट्स ऑफ IPC, I suggest that you enjoy it. After this, after 5th or 6th of October, 5th or 6th, we will start with evidence on 12th। आपको ब्रेक दूंगा थोड़े टाइम का, जिससे आप IPC के बाकी लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 12th अक्टूबर से हम लोग का एविडेंस स्टार्ट करना है। इट इज़ वेरी एसेंशियल, जिससे कि आपको ये पता चले कि प्रूव वहाँ पे क्या किया जाता है, क्या एविडेंस होता है, क्या चीज़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है, एक्सेट्रा। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो।